आप सब लोगों को जय मसीह की। मैं आप सब लोगों को एनवाईसी चैनल में मैं स्वागत करता हूं और मैं अहमदाबाद से हूं। आज हम लोग इस चैनल के द्वारा अंदर बिब्लिकल व्यू ऑन सेक्सुअलिटी के विषय में हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं और चर्चा में हमें मदद करेंगे कि बैंगलोर से डॉक्टर सोनी हमारे बीच में हैं और चंडीगढ़ से ब्रदर लिजो हमारे बीच में है। वो हमें हिंदी में ट्रांसलेशन करने में हमें मदद करेंगे। अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सोनी और ब्रदर लिजो जो है हमारे बीच में वो अपना परिचय कराएंगे और आगे के समय में हम लोग जो है अपने टॉपिक में जाएंगे। ओके, ओवर टू डॉक्टर सोनी। Okay, thank you very much, Pastor Cyril, for inviting me to this talk show. As Pastor Cyril already mentioned, my name is Soni Babu and I am from Bangalore. I'm married. My wife's name is Dimple. I have two children. My son Joel is a teenager and my daughter Shail is a preteen. So I'm happy to be with all of you, and I say this sometimes or many times that I'm a young man with a lot of gray hair. So I'm so happy to be with all the young people, and anything to do with young people excites me. I hope this will be a blessing to all of you. Thank you, thank you, thank you. Lijo. Okay, I would like to thank Cyril Bhaiya for this opportunity that he has given us to come to this talk show and to translate for our resource person, Dr. Soni Babu. And it's like a great opportunity for me to come along with all those wonderful people that God has created. And on my side, as Bhaiya said, my name is Lijo and I'm from Chandigarh. And right now I'm pursuing my MBA. And like my parents are the missionaries of Punjab. They came here 22 years before. So I'm a son of a missionary, a pastor. So again, it's a great opportunity for me to gather along with you people for this talk show. Thank you. Thank you, Lijo. The main reason before going to the topic of today's topic, I would like to say that the main audience for this talk show, it's for the whole country, but especially the major part of audience will be from the northern side. So Lijo will be helping us in the translation, especially when Dr. Soni Bhaiya will be taking care of the topics and going ahead. The Lijo will be helping us in the translation in Hindi. Okay, Bhaiya, the reason why I'm choosing this topic, daily or by yearly, when we see the young peoples, the youths, especially they are totally addicted and to these sexual problems and addicted to the sexual things. And the main thing is that before of that, especially in the marriage, in the family, we can see a kind of a people, the family has been broken, परिवार टूट जाते हैं और केवल इसी के एडिक्शन के होने की वजह से, सेक्सुअल बातों में एडिक्शन होने की वजह से लोग पोर्नोग्राफी में चले जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाता है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि आज एक परमेश्वर के दास के द्वारा हम लोग ये सुनेंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार बिब्लिकल सेक्सुअलिटी क्या है और परमेश्वर इस चीज को किस तरीके से देखता है, उस नजर को हम लोग देखेंगे और किस प्रकार से हम बाहर आ सकते हैं। हाउ कैन वी रिडीम अवरसेल्फ फ्रॉम दिस एडिक्शन। सो डॉक्टर सोनी, कैन यू हेल्प अस इन टू हैव ए क्लियर आइडिया ऑन दिस टॉपिक एंड हाउ कैन वी गेट आउट फ्रॉम दिस एडिक्शंस एंड हाउ कैन द यूथ्स कैन बी रिडीम फ्रॉम दिस टाइप फ्रॉम दिस addiction. Over to Dr. Soni Babu. Okay, yes, Cyril, what you talk as a topic is very, very relevant for our young people. और ब्रदर सिरिल, जो आपने जो विषय हमारे बीच में आज लिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज के समय के लिए। And we really want, that is the reality in the world. और ये एक वास्तविकता है जो इस संसार की बात है। The problem of sex and sexuality. आज जो हमारा विषय है, जिसके लिए हम जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे, वो है यौन और लैंगिकता के ऊपर। हम इन दोनों विषयों के ऊपर बात करेंगे। We want to know what does the Bible have to say about this. और हम आज देखेंगे कि पवित्र शास्त्र इन दोनों विषयों के बारे में क्या कहता है। By the way, the Bible has a lot to say.
पर मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल में इस विषय के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। In chapter 1 of Genesis, जब हम उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, says God created man and woman. हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री की उनको बनाया, उनकी उत्पत्ति की। Right there you see two different individuals. और वहीं पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने दो अलग-अलग व्यक्तियों को बनाया है। The God called them Adam and Eve. और परमेश्वर ने उनको नाम दिया जिसे हम हव्वा और आदम के रूप से कहते हैं, Not Adam and Steve. ना कि आदम और स्टीव, No, not even Madam and Eve. और ऐसा भी नहीं है कि मैडम और ईव ऐसा नाम दिया हो। Very clearly, one was Adam, the other was Eve. और बहुत ही साफ रीति से वहां पर दो अलग-अलग व्यक्तिगत लोगों के बारे में बताया गया है जिनका नाम आदम और हव्वा था। But I think today we are a little bit confused about all these things. पर आज मुझे लगता है कि हम इन सब बातों से थोड़ा संकोच में है कि ये कैसा हो रहा है। So we want to address right from the origin of birth and through how we grow up as human beings, and then we end up as we separate into our understanding about our sexualities and the consequences of our actions. We want to address all that today. और इसलिए आज हम इन सब मुद्दों पर, हमारे यौन संबंधित लैंगिकता के ऊपर, जब हम हमारे जन्म से लेकर जब हम बड़े होते हैं, उन सब समयों में हमें अलग-अलग परिस्थितियों में इन सब विषयों को ध्यान देना पड़ता है, देखना पड़ता है, और आज हम इस विषयों पर बाइबल के आधार पे सीखेंगे। Okay, so that is where we want to start. ओके, इस प्रकार आज का हम शो शुरू करना जा रहे हैं। Then I want to just take you through a simple or a process of how we reached or where we reached. Okay, yeah, this is about, right from childhood we need to know some of these things about the problem of sexuality. और जिस प्रकार आप स्क्रीन में देख सकते हैं, बचपन से ही हमें लैंगिकता के बारे में और उसके नजरिए के बारे में जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। I would encourage all the parents and elders to talk even to small children about and may help them to understand in their own ways these realities of life. और मैं वास्तविक रूप से माता पिताओं और घर के बुजुर्गों को उत्साहित करना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों से, छोटे उम्र के बच्चे हों, बड़े उम्र के बच्चे हों, उनसे लैंगिकता के बारे में, इन सब विषयों के ऊपर बातचीत करें और उन्हें समझाए कि यौन और लैंगिकता क्या है। Okay, this is what I call the stages of our life. और ये जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये है हमारे जीवन के स्तर जो हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। If you see there, we have put the first stage as prenatal stage, that is from the conception to birth. अब हम जो पहला काल है जो हम अपने जीवन में देखते हैं, वो है शिशु का काल, जो वो ऐसा समय है जब हम अपनी माता के गर्भ से लेकर जब तक हम करीबन 2 वर्ष के हों तब तक का समय होता है ये। We all know it's about 9 months to 10 months. और हम ये भी जानते हैं कि जो एक गर्भ धारण का जो समय होता है वो 9 से 10 का समय रहता है, 9 से 10 महीने का समय रहता है। It's very important we realize that is a first stage of your life. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो समय है, वो जो काल है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। Why am I saying that? Because many people, we will come to that later, when they sometimes abort children, they are taking away life of the stage. मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो काल है, ये जो समय है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कुछ माता पिता जब भ्रूण हत्या कर देते हैं, वो इस समय के या फिर इस काल में जो बच्चा होता है उसकी हत्या करते हैं। Then we have infant, which is from birth to 2 years, we call them as infants. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद आता है शिशु काल या फिर बहुत ही जो छोटे बच्चे होते हैं जो Then जन्म we से have लेकर the 2 childhood, साल which तक। is usually when you start going to school from say 3 years or till about 13 years or 2 to 13 years. शिशु काल के बाद जो समय आता है वो है बचपन का समय, जो कि 2 साल से लेके 13 साल की उम्र के बच्चों का रहता है, जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। Then there is one stage which is a very important stage, which is what we are going to talk about, called adolescence, which is usually from around 13 till about 18. उसके बाद जो एक समय आता है उसे हम कहते हैं किशोर अवस्था, जो 13 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र के बच्चों में पाया जाता है। Then we have the adult stage, or the when we are mature, even the government of India will give you a license and things like that. और उसके बाद आता है
जवानी का समय अर्थात 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हो उसे हम जवान बोलते हैं, क्योंकि भारत सरकार भी उसे एक व्यक्तिगत रूप से परिपक्व इंसान मानती है। So next few minutes, let's look at the stage called adolescent stage. और हम आगे की बातों को सीखने जाएंगे, वो है किशोर अवस्था का समय। Telling you, it's really a very interesting, dynamic stage. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो समय है, किशोर अवस्था का समय है, ये बहुत ही अच्छा और जिज्ञासापूर्ण समय है। I don't know if you all have gone on this thing called roller coaster. What is that called in Hindi? Roller coaster, eh? Have you gone on a ride like that? ओके आपने शायद एक रोलर कोस्टर मतलब एक ऐसा एक गाड़ी है जिसके ऊपर हम बैठ के सवारी करते हैं, जो बहुत खतरनाक होता है और हमें बहुत ज्यादा अचंभित करता है। ऐसा एक गाड़ी है जिसको हम रोलर कोस्टर बोलते हैं। In one way it's fun, the other side it's fear, it's sometimes butterfly in your stomach, all funny feelings. It's a crazy ride. जब हम उस खेल में या फिर उस गाड़ी में जब हम बैठते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे अनुभव होते हैं। हम खुश होते हैं, हम डरे हुए होते हैं, हमारे पेट में गुदगुदी हो रही होती है, और ये सब मिला के वो उस काल में या फिर उस समय में हमारे साथ होता है। You want to come out of that ride, but at the same time you want to be inside that also. आप चाहते हैं कि आप उस खेल या फिर उस राइड से बाहर निकले और थोड़ा समय व्यतीत करें, पर उसी के साथ ही साथ आपका दिल कहता है कि मैं इसको और समय भी कर सकता हूँ। Adolescence is something like that. उसी प्रकार एक राइड की तरह है किशोर अवस्था भी। So let's see. Adolescence is a period between childhood and adulthood. And it starts at puberty and ends with maturity. I'll tell you what puberty is. मैं आपको बताना चाहता हूँ किशोर अवस्था एक ऐसा समय है जो बचपन के समय को छोड़कर और जवानी के समय तक पहुंचने के बीच की जो समय है, एक बच्चे के जीवन का जो समय है, उसे हम किशोर अवस्था बोलते हैं। किशोर अवस्था में हम यौवन अवस्था के कार्य को भी अपने जीवन में देखते हैं और वो हमें परिपक्वता की ओर लेके जाता है। This show or this talk show, I'll talk primarily more from the boys' side. Probably another time we'll talk little more on from the girls' side. आज मैं आपको एक लड़के के नजरिए से इन बातों को बताना चाहता हूं और आगे के समय में, आगे के टॉक शो में एक बहन या फिर एक लड़की के नजरिए से भी मैं आपको बताऊंगा। During this stage, a lot of changes are happening in you. इस समय हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बहुत सारी बदलावट आना शुरू हो जाता है। Some of the changes are all what we call physical changes on your body especially. और ज्यादातर जो बदलाव आते हैं वो हमारे शारीरिक रूप से आते हैं। Like suddenly you feel that your voice is cracking. और you're a boy. जब शारीरिक बदलाव आते हैं, उसका पहला ऐसा रहता है कि हमारे जो शब्द है, हमारा जो बोलना है, जो आवाज है, वो बदलने लग जाती है, मोटा होने लगता है। Usually that doesn't happen to girls, but it happens to boys. हम देख सकते हैं कि ये चीज ज्यादातर लड़कों के साथ होता है, लड़कियों के साथ नहीं होता। लड़कों का आवाज गंभीर हो जाता है। And then you start growing hair in different parts of your body. और उसी के साथ ही साथ आपके शरीर के अलग-अलग अंगों में रोम अर्थात बाल आने शुरू हो जाते हैं। On your face, आपके चेहरे में, in your armpits, आपके कक्ष में, maybe in your private parts, और आपके गुप्त अंगों के पास भी बाल आना शुरू हो जाते हैं। Those are all what happens during that stage. और ये किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था का जो समय है, उस समय ऐसे बदलाव हमारे जीवन में आते हैं। And then you start beginning to grow taller, your hands and legs become longer. और उसी के साथ ही साथ आपका शरीर विकसित होने लगता है, आपके हाथ पैर लंबे होने शुरू हो जाते हैं। And also you might start developing some pimples on your face. और उसी के साथ ही साथ आपके चेहरे पे कील, मुहासू और फोड़े भी आ सकते हैं। All this is very normal in that stage. और ये सब बातें किशोर अवस्था के क्रिया में साधारण है। How much ever you try to avoid, it will happen mostly. आप कितनी भी कोशिश करें कि ये मेरे जीवन में ना हो, पर ये होगा ही। Next, other than your body, there are some changes happening in your mind. सिर्फ शरीर ही नहीं, आपके हृदय, आपके दिल और दिमाग में भी इस अवस्था का बदलाव शुरू होता है। We call it identity crisis. हम इसको एक व्यक्तिगत रीति से हम इसे बता सकते हैं कि हमारे व्यक्तिगत रूप से हम इसे समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है। You don't want to be with children because you are not a child.
You can't be with adults because you're not an adult. You're like in between. So you don't know what you're exactly, child or adult. It's like an identity crisis. आप एक ऐसे समय में फंस जाते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि क्या मैं बच्चा हूँ, क्या मैं जवान हूँ, क्या मैं बुजुर्गों के साथ बैठ सकता हूँ या फिर मैं बहुत छोटा हूँ। आप अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। आप व्यक्तिगत रीति से इस शक में रहते हैं कि क्या मैं बच्चा हूँ या जवान हूँ। You start becoming more self-conscious. आप ज्यादा अपने ऊपर ध्यान देने लग जाते हैं, आप आत्म जागरूक बन जाते हैं। Especially your hairstyle, your dressing, all of that will change because you become more conscious of how you look. आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं कि आप कैसे दिखते हैं, आप अपने बालों को कैसे संवारते हैं, आप किस प्रकार के वस्त्र अर्थात कपड़ों को पहनते हैं। Also, you'll have a lot of mood swings. Sometimes you'll feel very excited. Sometimes you'll feel a little depressed, frustration. It's a very, different kinds of feelings go through. You go at different days, different feelings. और हर रोज आपका जो भावुक जो अवस्था होगा वो बदलता जाएगा। किसी दिन आपको गुस्सा आएगा, किसी दिन आप बहुत शांत होंगे, किसी दिन आप बहुत ही आनंदित होंगे, प्यार से रहेंगे। ये सब इस अवस्था के एक एक कार्य हैं। Like I said earlier, because of your physical change, you start sweating little more, so you start using perfume. You want to smell good. All of that is the stage. जिस प्रकार मैंने आपको पहले भी बताया कि हम शारीरिक रूप से बदलना शुरू हो जाता है, तो उसके वजह से हमारे शरीर से पसीना निकलने लगता है। तो उस पसीने की महक को खत्म करने के लिए, बदबू को खत्म करने के लिए हम परफ्यूम्स का इस्तेमाल भी करते हैं। Then something else happens, which is called the relational changes or social changes. और तीसरी बात जो ये है, जो इस अवस्था में हमारे साथ होता है, वो है सामाजिक रूप से हम कैसे बदलते हैं। That's where on the time when you start wanting to develop relationships with the opposite sex. If you're a boy, maybe with girls. If it's a girl, then with boys. और ये एक ऐसा समय है जब आप समाज में अपना एक व्यक्तिगत रूप से अपना एक हिस्सा बनाना चाहते हैं और उसी के साथ ही साथ आप किसी दूसरे लिंग, अगर आप लड़के हैं तो लड़कियों के प्रति, अगर आप लड़की हैं तो लड़के के प्रति एक आपका एक मोह भाव प्रकट होना शुरू हो जाता है। And you'll start developing social groups and you'll try to fit into that group. और एक ऐसा समय है जब सामाजिक रूप से गुट बनना शुरू हो जाएगा और आप उन गुटों में आप अपने आप को रखना चाहते हैं। Okay, by the way, these are all normal things, okay? पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब बातें साधारण हैं। But there are some things that becomes kind of a problem at this stage. पर अभी तक मैंने आपको जो बताया ये सब साधारण बातें हैं, पर इसके अलावा ऐसी कुछ मुद्दे हैं जो साधारण नहीं है और आगे जाके परेशानियों को खड़ा करती हैं। And I want to address in this talk some of the problems, not the normal things, some of the problem areas. और आज के इस शो में मैं आपको इन सब मुद्दों के बारे में, इन सब समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूँ। Let's go to the next slide. हम अगले स्लाइड की ओर जाएंगे। More than the physical things, it's the emotional problems or emotional changes that you need to understand and deal with. मैं आपको बताना चाहता हूँ किशोर अवस्था में आपको शारीरिक बदलाव से ज्यादा आपको अपने भावुक बदलावों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसको समझना चाहिए। So if you don't deal with one, it will lead to the next one. अगर आप अपनी एक समस्या से अगर आप उभर नहीं पा रहे हैं, अगर आप उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आप किसी दूसरे समस्या में उसी के साथ ही चले जाएंगे। Problems like loneliness, anxiety, anger, low self-esteem, depression, suicide, these are all the things that will come in this stage. You need to know how to deal with it. जिस प्रकार हम देख सकते हैं अकेलापन, चिंता, गुस्सा, आत्मसंकोच, ठीक है, निराशा और आत्महत्या, ये सब ऐसे विषय हैं जिसमें हम फंस जाते हैं इस समय पे। Other than that, you have, as I said, relational issues. और उसी के साथ ही साथ मैं आपको एक और मुद्दा बताना चाहता हूं, वो है संबंध के आधार पर जो मुद्दे हैं या फिर जो समस्याएं हैं। This is the time when all your friends have girlfriends. The boys will have girlfriends, so you will also want to have a girlfriend. और ये एक ऐसा समय होगा जब आपके साथी भाई या दोस्त, उनकी सबकी एक दोस्त होंगी, एक साथिन होंगी, पर आपका शायद नहीं हो सकता, ऐसा एक समय आएगा। You'll start falling and you'll start liking a particular girl. आप एक ऐसा समय आएगा कि आप किसी लड़की को पसंद करना शुरू कर लेंगे। Dating, you'll want to go out with girls separately. आप उनको डेटिंग हम बोल सकते हैं, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे किसी जगहों में। You'll start dreaming of getting married. आप ये भी सोचने लगेंगे कि मैं उससे शादी कर लूंगा, या फिर उसके आधार पे आप ऐसी बातें आपके हृदय में आनी शुरू हो जाएंगी। You don't know what to do. A lot of challenges. We'll deal with all that.
और आपको समझ नहीं आता कि अभी मुझे वास्तविक रूप से अभी मुझे क्या करना चाहिए, और आपको इन सब प्रक्रियाओं से और इन सब बातों से कैसे निकलना है ये हम आपको बताएंगे। Then you come to another big serious problem with sex. और उसके साथ ही साथ एक अगला जो मुद्दा है, जो बहुत ही जरूरी मुद्दा है, वो है यौन संबंधित मुद्दे। Especially because there are a lot of hormones in your body being produced and you are becoming like an adult, you will start wanting to do what adults do, especially when it comes to sex. मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इस अवस्था में होते हैं, किशोर अवस्था में होते हैं, तब आपका जो शरीर है वो ऐसे हार्मोन्स को बाहर निकालता है, जिससे आप एक जवानी के समय में एक व्यक्ति कैसा करता है वो सब बातों को करना चाहता है, वो सब चीजों को करना चाहता है। ज्यादातर वो सब बातें यौन संबंधित होती हैं। If you don't handle it properly, you will end up with premarital sex, pornography, or abortion, maybe homosexuality, maybe some kind of disease also you can get, like अगर HIV. अगर आप इन समस्या को, अगर इस समय को अगर आप अच्छी रीति से समझ नहीं पाएंगे, तो आप कहीं अलग परेशानियों में जा सकते हैं, जैसे हवस हो गया, या फिर किसी हवस हो गया, ठीक है, काम उत्तेजित चित्र हो गए, गर्भपात हो गया, समलैंगिक लोगों के साथ एक संबंध हो गया, या फिर ऐसी बीमारियां जो यौन से एक दूसरे के पास चली जाती हैं, वैसी बीमारियां हमारे जीवन में आ सकती हैं। Okay, let's go to the next slide. Okay, we won't deal about addictions, but addiction is also a problem where you will be exposed to smoking, drinking, drugs. These are all things that you will face around that stage. We will take these issues later on, but today we will talk especially about sexual issue. इसी के साथ ही साथ हमने आपको दिखाया है लत। आज लत की जो अवस्था है, जो प्रक्रिया है, पर हम उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि आज का जो हमारा उद्देश्य है, जो मुद्दा है, वो यौन संबंधित है, तो हम उसके विषय में आपको ज्यादा बातें सिखाएंगे और बताएंगे। And by the way, if you don't handle it, you can end up with being abused sexually, physically, emotionally, and it can really destroy your future. अगर आप इस अवस्था को बड़े समझदारी से अगर आप नहीं संभालेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण और यौन शोषण भी आपको इस सब चीजों का आपके जीवन में हो सकता है। So how do people get into these problems? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे परेशानियों में लोग कैसे फंस जाते हैं। Many times they do what's called experimenting. They just try and see what will happen out of, just like an experiment they try out of curiosity. Sometimes their friends are doing, they also want to do the same thing. Sometimes they're watching things on the media, internet. They want to try the same thing. These things pull them into that issue. मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जवानों के बीच में या फिर कौशल अवस्था में जो बच्चे हैं, उनके जीवन में ये कार्य, ये समस्या इसलिए आती है क्योंकि वो चाहते हैं, वो इसे प्रयोग करके देखना चाहते हैं कि ये कैसा लगता है या फिर ये कैसा होगा, या फिर उनके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा आ जाती है दूसरे लोगों को देखकर, अपनी उम्र से बड़े लोगों को देखकर उनके अंदर एक जिज्ञासा आती है कि हम भी इसे करके देखेंगे कि इसका क्या अनुभव है और कैसा है। उसी के साथ ही साथ उनके साथियों या दोस्तों के प्रभाव के वजह से भी वो इस प्रक्रिया में फंस सकते हैं और इस गलती को कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ मीडिया के आधार पर, मीडिया को देखते हुए कि वो वहां पर कैसा हो रहा है, उस चीज को ध्यान पे देखते हुए, इन सब चीजों को अपने जीवन में देखकर वो इस समस्या में फंस जाते हैं। I told you in the beginning, God created man and woman, and to have sex between man and woman is a normal thing. और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे शुरुआत में ही मैंने आपको कहा था कि जिस प्रकार परमेश्वर ने आदि में एक नर और नारी अर्थात पुरुष और स्त्री को बनाया, और उन दोनों के बीच में यौन संबंध होना साधारण है, और इसीलिए ही परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। Let's go to the next slide. But this must be in a certain context, and that should be love. और ये जो यौन संबंध है ये जरूरी है, पर ये यौन संबंध किसी हवस के रूप से नहीं, वरन प्रेम के रूप से हमारे जीवनों में होना चाहिए। So God who created love, sex, is also the God who gave us love. So we must have love in our heart. Only then our sex and sexual life will become it will be in the right way. जिस परमेश्वर ने यौन संबंध या लैंगिक संबंध को बनाना जरूरी समझा, वही परमेश्वर ने प्यार को भी बनाया है, क्योंकि प्यार और यौन संबंध और लैंगिकता दोनों एक साथ होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से कोई भी अगर नहीं है तो वो एक गलत है और वो एक मुद्दा है। By the way, there are a lot of different kinds of love, but the Bible talks about one particular kind of love called agape love.
हम देख सकते हैं कि कई प्रकार के प्रेम या प्यार होता है, पर जो बाइबल पवित्र शास्त्र ज्यादातर एक प्रकार के प्रेम के बारे में बताता है, वो है अगापे प्रेम, जिसे हम And that अगापे is कहते हैं। the best and the purest form of love. और अगापे जो प्रेम है या फिर वो जो शब्द है, वो सबसे सुंदर और सबसे विशेषणीय शब्द है और प्यार का अनुभव है। If that is not in your life between a boy and a girl, then all the other issues, especially related to sex, will become a big destruction in our life. मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अगापे के रीति का एक प्रेम, एक प्यार अगर आपके जीवन में नहीं है, मतलब एक लड़के और लड़की के जीवन में नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो संबंध है, आपका जो यौन संबंध हो या आपका लैंगिकता हो, वो एक पाप का कारण बन सकता है। Unless and until we understand true love, you will end up in something different from love called lust. मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रेम के वास्तविकता को या प्यार के वास्तविकता को अगर आप नहीं समझ सकते हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप प्रेम में नहीं फंसेंगे, वरन आप हवस के शिकारी हो जाएंगे। When you have sex without love, it's called lust. मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ प्रेम के बिना यौन संबंध रखते हैं, तो वो प्रेम का अर्थ नहीं देगा, वरन हवस का अर्थ देगा। So we quickly wrote down a few points here. Love gives, lust will take away from that person. मैं आपको इसको और भी अच्छी रीति से समझाना चाहता हूं। प्यार है वो एक व्यक्ति को देते हैं, हम एक व्यक्ति को देते हैं हमारे जीवन से प्यार, पर हवस क्या है, हम किसी एक व्यक्ति से उसका काम लेते हैं। Love values a person. It is a process. It takes time. But lust is not like that. It doesn't value that person. It only uses that person. For lust, sex is only an act. It is immediate. It wants satisfaction then and there. There's no process. It doesn't take time. That's the difference between love and lust. मैं आपको बताना चाहता हूं, प्यार और हवस में अलग अलग बातें हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्यार जो है वो एक दूसरे व्यक्ति को आदर करता है, उनको सम्मान देता है, वरन हवस जो होता है वो दूसरे व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल करता है। उसी के साथ ही साथ प्यार जो है वो एक प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे आराम से होता है, पर जो यौन संबंध है वो एक क्रिया है। और उसी के साथ ही साथ प्यार हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे लोगों के साथ किस प्रकार उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, वरन जो यौन संबंध है वो एक क्षण में होने वाला एक प्रक्रिया है। When you have sex without true love and before marriage, which is where you should actually be, you end up in a lot of problems. मैं आपको बताना चाहता हूं, शादी से पहले अगर आपके जीवन में अगर आप इस यौन संबंध या फिर आप किसी के साथ यौन संबंध हो जाता है या लैंगिक विषय में आप फंस जाते हैं, तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। You lose your virginity, you end up sometimes unwanted pregnancy, then you will be forced to abort the child, or even if you have a child, it will be a child without proper parents, or sometimes because you want to have the child in the right way, you'll be forced to marry that person. Lot of unnecessary problems come into our life. अगर आप शादी से पहले एक पूर्ण विवाह, अगर आप शादी से पहले अगर किसी के साथ यौन संबंध रखते हैं, तो आपको इन प्रकारों की समस्याओं को अपने जीवन में देखना पड़ेगा, जिस प्रकार है लिखा हुआ है। जैसे यौवन अवस्था में यौवन जो प्रक्रिया है उसको आप खत्म कर देते हैं, आपकी वर्जिनिटी खत्म हो जाती है, आप ना चाहते हुए भी एक बच्चे को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, और वो एक नाजायज बच्चा या फिर एक नाजायज औलाद के रूप से हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ ही साथ आपको जबरदस्ती शादी करना पड़ सकता है और आपका गर्भपात भी शायद आपको करना पड़ेगा। अगर ये सब चीजें अगर नहीं भी होती हैं, तो शायद आपके जीवन में ऐसी एक बीमारी आ जाएगी जो आपके इस यौन संबंध या क्रिया के वजह से आपके जीवन में या शरीर में हुआ है। If we end up in this place, which is called a premarital sex, अगर हम इस स्टेज में या फिर इस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसे हम कहते हैं शादी के पूर्ण हमारे किसी के साथ यौन संबंध हो, तो इस प्रकार की समस्याओं को हमें अपने जीवन में देखना पड़ेगा। we can end up with a lot of unnecessary problems that we will carry the rest of our lives. और उस अवस्था में आप जब फंस जाएंगे तो आपको अपने पूरे जीवन में, पूरे जीवन काल में
कई प्रकार की समस्याओं को अपने शरीर में, अपने जीवनों में महसूस करना पड़ेगा और उसके साथ चलना पड़ेगा। So the stage of adolescence is very important so that you understand your own sexuality, what is happening in your body, and control it and go on the right track so that you can enjoy the rest of your life. मैं आपको बताना चाहता हूँ किशोर अवस्था जिसके बारे में आज का टॉक शो है, वो अवस्था या फिर वो एक काल, वो बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण काल है। और जब आप उस अवस्था को आप सहमित कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उस पर आप कंट्रोल रख सकते हैं, तो आप आगे के समय को, आगे के जीवन को आप बड़े ही अच्छी रीति से, बड़े ही खुशी के साथ, आनंद के साथ अपने जीवन में व्यतीत कर पाएंगे। So it's very important that you understand how God has created you and what is the purpose of relationships and things related to the opposite sex. इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप इस चीज को समझे कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है और परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य से बनाया है और परमेश्वर ने ये लैंगिकता का विषय हमारे जीवन में क्यों दिया है, और इन सब चीजों को समझकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर के प्रेम में भी पाए जा सके। Okay, so let me stop here and we'll just open up some questions. Pastor Cyril may want to add some things or ask some questions, doubts. I've just given you a simple brief about what happens normally in that stage. ये जो समय होगा हमारा प्रश्न पूछने का समय होगा, तो हमारे बीच में पास्टर सिरिल हैं, वो हमारे बीच में कुछ प्रश्नों को पूछ सकते हैं जिससे हम समझ पाएंगे कि आगे के और क्या-क्या बातें हैं और क्या-क्या प्रश्न हैं जो लोगों के जीवनों में ऐसा होता रहता है। Thank you, Soni Bhaiya, for giving us a clear idea of adolescence. हम सोनी भैया का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें लैंगिकता और यौन संबंध के बारे में और उसी के साथ साथ किशोर अवस्था में ये जो प्रक्रिया है जो हमारे जीवन में होती हैं, आपने उन्हें बहुत अच्छी रीति से हमें समझाने की कोशिश की है। कई बार कुछ सवाल है, there are several questions normally arises in the mind of youths. The first thing is dating biblically right or wrong? You can give a biblical view and along with the world view. What do you think? Okay, so first of all, we must understand this whole idea. What is this dating actually? आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। उस प्रश्न में आपने डेटिंग के बारे में बताया है, पूछा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तविक रूप से ये डेटिंग क्या है या इसके विषय में हम कैसे सीख सकते हैं। Okay, dating is a kind of a culture that is there in many other places, where a boy who is beginning to start liking a girl or a girl who is beginning to start liking a boy, they want to meet separately, alone at different places and spend time to get to know each other and see whether this relationship will continue well into a permanent relationship. That's the idea behind dating. डेटिंग की जो प्रक्रिया है या फिर उसके पीछे की जो बात है वो इस प्रकार है, हम देख सकते हैं कि जब कोई लड़का या लड़की आपस में अगर उनको एक दूसरे से पसंद है या फिर किसी लड़की को लड़का या किसी लड़के को लड़की पसंद आती है, तो वे उसके बारे में बताते हैं और वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कुछ समय को व्यतीत करें। वो अकेले किसी जगहों में जाते हैं, अपने कुछ अलग अलग स्थानों में जाते हैं मिलने के लिए, साथ रहने के लिए, और वो ये चीज को जानना चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं कि नहीं, वो अपने संबंध को एक दूसरे के साथ अच्छी रीति से बनाए रख सकते हैं कि नहीं। तो डेटिंग का जो मुद्दा है या फिर जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार की है। Let me say one thing. Liking a girl at a certain age is nothing wrong, or to get attracted to a girl is nothing wrong. Okay, that is normal. You will get attracted to some girl or some boy at that stage of your life. मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाए या फिर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाए, ये किशोर अवस्था का जो समय है ये बहुत ही साधारण सी बात है। ये सबके जीवन में होता है, ये गलत नहीं है किसी के प्रति आकर्षित होना। But if you start getting close to that person, each other, physical closeness, remember there's a lot of physical changes and hormones changes happening inside of us. पर मैं आपको उसी के साथ ही साथ बताना चाहता हूं कि आप किसी के साथ एक अच्छे संबंध में आते हैं, पर अगर वो संबंध कुछ ज्यादा ही निजी हो जाए, जिस प्रकार एक शारीरिक संबंध बन जाए, तो आपके शरीर में और आपके दिमाग में बहुत सारे चीजों का बदलाव आना शुरू हो जाता है। Have you played with magnets? क्या आपने चुंबक के साथ खेले हैं कभी आप लोग? You take two magnets and keep it at one distance. अगर आप दो चुंबक को लेंगे और उसे एक कुछ दूरी में अगर आप उसे रखेंगे,
usually that will stay there. हम देख सकते हैं कि वो क्या रहेगा, चुंबक उसी स्थान में स्थिर रहेगा You कुछ समय के slowly लिए। bring it closer little by little. आप कोशिश करें कि उस चुंबक को थोड़ा पास लेके आने की कोशिश करें। At one point, suddenly they'll leave your hand and they'll just get attracted and touch each other. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप उस चुंबक को पास लेके आने की कोशिश करेंगे तो ऐसा एक पल आएगा कि वो चुंबक उस आकर्षण के वजह से आपके हाथ से छूट जाएगा और वो एक दूसरे में जा लगेंगे। You will be surprised how suddenly it happened. और आप बहुत असमंजस में रह जाएंगे कि ये कैसे हुआ। That is the problem with dating. और यही जैसे एक उदाहरण के साथ हमने आपको बताया कि डेटिंग में भी इस प्रकार का कारण होता है, प्रक्रिया होता है। If you keep a healthy distance, no problem. अगर आप एक दूरी बनाए रखें, एक सामाजिक दूरी बनाए रखें तो अच्छी बात है। From a distance, if you like the girl, that's okay. But the moment you start getting close, at some point you will just get stuck into a problem. और अगर आप एक दूरी बना के रखेंगे तो उस डेटिंग में या फिर उस बात में कोई गलती नहीं है, पर आप उस दूरी को अगर आप खत्म करके पास आने की कोशिश करेंगे तो अचानक से एक ऐसा समय आएगा कि आप दोनों एक साथ हो जाएंगे और वो जो एक समय है वो आपके लिए बहुत ही कठिनाई और मुश्किल का समय होगा। The problem is you won't know when that is. पर जो इसका जो कारण है और जो समस्या है इस कार्य का वो ये है कि हमें खुद समझ नहीं आता कि हमारे जीवन में ये कब हो गया। So that's a problem. वो एक समस्या है। By the way, that Yeah. you can, as I said, you can like a girl without dating. But when you get into that, you are getting yourself into a place where you don't know when you will suddenly get locked. And to pull yourself out, going to be a big problem. और उसी के साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी लड़के या लड़की को पसंद करने में गलती नहीं है, पर जब आप पसंद करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे वो जो दूरी है वो कम होने लग जाती है और जब वो दूरी कम होने लगती है तो आप अचानक से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि ये कार्य कब हुआ या फिर ऐसी एक अवस्था आपके जीवन में कैसे आई। ये जो एक क्रिया है या फिर ये जो समय है ये बहुत ही मुश्किल का समय है और इसे बड़े ध्यान से हमें देखना पड़ेगा। Thank you, Sony Via. It is very clearly you said it. Now, how can a boy control himself? Anyway, उसके मन में तो ये विचार तो आएगा ही और क्या कहते हैं attraction होगा, सब कुछ होगा. So how can he control himself? As a Christian, how can he control himself? Okay, let me tell you one thing. Again, I'm saying this. Usually your attraction to the girl is because of, the first thing is because of chemical, hormonal, bodily, physical changes. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हम अगर एक लड़के के नजरिए से अगर हम आपको बताएं तो अगर आप किसी लड़की के प्रति अगर आप आकर्षित होते हैं, वो आकर्षण का सबसे बड़ा कारण आपके शरीर में होने वाले बदलाव जो मानसिक हैं, जो हार्मोन्स के जो बदलाव के वजह से आपके शरीर के विकास के वजह से जो कार्य होता है उसके वजह से आप किसी लड़की के प्रति आकर्षित होते हैं। And that's why usually the attraction in the beginning is physical attraction first. You will always like somebody physically who's beautiful or handsome, something like that. Nobody generally won't get attracted to somebody whom you think is not physically attractive. इसलिए सबसे पहले इस कार्य में जब हम जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति या लड़का सबसे पहले शारीरिक रूप से उससे आकर्षित होता है कि वो लड़की कैसे दिखती है, वो उसका शरीर कैसा है। अगर कोई लड़का या लड़की अगर जिसका शरीर दिखने में इतना अच्छा ना हो तो हम सबसे पहले कोई भी व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित नहीं होता है। So the best way is to use this physical changes and hormones, everything, channel it for something else. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समस्या से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, जो रसायनों के वजह से हो सकता है और हार्मोन्स के वजह से हो सकता है, उन सब चीजों का जब आपके जीवन में बदलाव आता है तो उस समय जो आपके अंदर जो ताकत आती है या फिर जो क्षमता आती है उसे आप किसी और कार्य के लिए इस्तेमाल करें। Maybe sports. आप खेल कूद के लिए इस्तेमाल करें। Maybe some good hobbies. कुछ अच्छे कार्यों को या जिसे हम हॉबी बोलते हैं, आदतों को आप शुरू करें। Maybe studying on a certain career path. और आप अपने भविष्य के आधार पे कुछ विषयों को लेकर आप पढ़ाई करें। Also,
see if you can be together with other people so that you can have some social life. Otherwise you will get totally into a lonely life with this particular dream world or this attraction that you are having. और उसी के साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ऐसा ना रहे कि आप अकेले रहना शुरू कर दे। आप सामाजिक रूप से अपने दोस्त बनाए, गुट में रहे, और उससे क्या होगा कि आप अकेले कभी नहीं रहेंगे, वरन आपका एक बहुत अच्छा दोस्त का एक साथियों का एक बहुत अच्छा श्रृंखला आपके साथ रहेगा। You may not be able to stop your attraction, but you can channel your energy, your hormones and all that. You can channel that to something else मैं so that आपको you don't get into, you know, a relationship that will end up in sex and other consequences. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो इन रसायनों, आपके शरीर में होने वाले बदलाव जो रसायनों और हार्मोन्स के वजह से होता है, उससे जो क्षमता और ताकत आपके अंदर आती है, जो शरीर में आती है, उसको आप किसी और चीज के साथ या फिर आप किसी और चीज में लगा सकते हैं, जिसके द्वारा आप किसी अलग प्रकार के या किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध या यौन संबंध किसी के साथ आप नहीं कर पाएंगे, और जिसके द्वारा आप ऐसी ऐसी गलत चीजों से या फिर ऐसी ऐसी बातें जो वचन के विरुद्ध हैं, उससे आप बच सकते हैं। Yeah, so I would encourage young boys get involved in physical activities, maybe exercises, sports, you know, things like that, because then lot of your energy will get driven towards that. इसलिए मैं जवान लड़कों से इस प्रकार बोलना चाहूंगा कि इन सब बातों से बचने के लिए, इन आकर्षणों से बचने के लिए, या फिर इस आकर्षण के होने के बाद भी उसकी क्षमता से बचने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, खेल कूद में उस क्षमता को लगा सकते हैं। आप ऐसे कार्यों को कर सकते हैं जिसके द्वारा आपका जो शारीरिक विकास जरूर होगा और आप इस समस्या से दूर हो सकते हैं। Thank you, Sonia. Okay, my next question is, okay, by knowingly or unknowingly, if someone has get into it and he want to come out, so what will be the best option for him so he can come out very nicely and have a nice future? See, that is why you need to have somebody to talk to. अगर जाने अनजाने में कोई व्यक्ति, अगर कोई जवान इस परेशानी में फंस जाता है या फिर ऐसे कार्य कर लेता है, तो उस समय उस अवस्था से निकलने की सबसे ज्यादा जरूरत, या फिर उसे हम कैसे निकल सकते हैं, वो इसी प्रकार हो सकता है कि हमें किसी से बात करने की जरूरत है। First and foremost, don't live in guilt. Okay? Don't live in guilt. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये कार्य अगर आपके जीवन में हो जाता है, फिर भी आप ऐसे ना रहे कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती की है, या फिर आप उस गलती के अनुभव में अपने जीवन को व्यतीत ना करें। Talk to God. आप परमेश्वर से बात करें। Tell him about your problem. आप अपनी समस्या के बारे में परमेश्वर से कहें। Find somebody who you can trust, who's little more, who's gone through that stage. Talk to them. और व्यक्तिगत रीति से आप उस व्यक्ति से मिले जो आपको उस समस्या के बारे में अच्छे से समझा सके, और वो शायद खुद भी उस प्रक्रिया या फिर उस कार्य से गया होगा, तो वो आपको और भी अच्छे रीति से समझा सकता है। Don't try to lie or cheat or escape, do anything out of fear. Talk to somebody calmly, quietly, and you know, find a good solution how to move forward into this, out of this. और उसी के साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप गलती के अनुभव या फिर आपने बहुत बड़ी गलती की उस अनुभव में ना रहे, वरन आप उस व्यक्ति से बात करें जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं, ठीक है, और उससे बात करके आप इस गलती का ये जो समय है जो आपको लगता है कि आपने किया है, उनसे बात करके उस समस्या से बाहर निकलने की कोशिश करें और अपने आप को परमेश्वर के और करीब लेके जाए। One thing is for sure, if you continue doing something wrong, that will not correct your past. Only what you do right in the future can bring any correction to what you've done the wrong. Okay, so that is very important. You must stop that wrong path immediately and try to do from then on the right things forward. और उसी के साथ मैं आपको एक चीज जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि अगर आपने भूतकाल में अगर आपने कोई गलती की है, ठीक है, पर अगर आज भी अगर आप वैसी गलती को दोहराते रहते हैं तो वो एक बहुत बड़ी गलती है। वरन अगर आप जो गलती आपने पहले किया है उस गलती को छोड़कर अगर आप उसे सही करना चाहते हैं तो आप वहां पर जीतते हैं और आपका जय वहां पर होता है।
But some problems you may have to face the consequences for some time. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी-कभी ऐसी गलतियां करने के वजह से आपको कुछ समय के लिए या फिर कुछ काल के लिए आपको उसका जो भुगतान करना पड़ सकता है. Especially if it is a premarital sex and a child is conceived, then you have to face that up. अगर आपके इस यौन संबंध या शारीरिक संबंध के वजह से अगर आप शादी से पहले गर्भवती या फिर आपका एक बच्चा जन्म होने का एक समय आ जाता है, अगर ऐसे एक कार्य को होता है, तो आपके लिए उस मुद्दे या फिर उस कार्य को या फिर उससे छुपाना या फिर उससे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है. Very important, take the help of mature people. They will advise you what to do next. अगर आप ऐसे फंस जाते हैं तो इस कार्य से बचने के लिए आप परिपक्व लोगों की मदद ले, उनसे समझे और उनसे बात करें और उनसे बोले कि मैंने ऐसी एक गलती की है और मैं इस चीज से निकलना चाहता हूँ. Okay, thank you, Via. Okay, my next question is, why homosexuality is biblically wrong? Because many of the countries has been approved the lesbianism, gay marriage and all that. Why the homosexuality is biblically wrong? अगला Why प्रश्न. the Bible believing Christians are not approving the homosexuality? Okay, I think I told you in the beginning, God created Adam and Eve, okay? Man and woman. That's how God created. अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि हम समलैंगिकता या फिर एक लड़का एक लड़के के साथ संबंध या लड़की लड़की के संबंध के साथ का जो संबंध है जिसे हम समलैंगिकता बोलते हैं, उसके विषय में पवित्र शास्त्र क्या कहता है और संसार का उसका आधार क्या है, और उसी के साथ साथ बहुत सारे देशों में ये चीज को लागू किया गया है. तो हम उसके विषय में सीखेंगे. और जिस प्रकार हमें एक उत्तर मिला है, जिस प्रकार पहले मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया. Just like in adolescence, we have a problem of getting attracted to the opposite sex. There is another problem in our adolescence. Some of the people get attracted to the same sex. जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि किशोर अवस्था में एक ऐसा एक समय आता है जब आप दूसरे लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं. सिर्फ वही एक अवस्था नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं किशोर अवस्था में आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने स्वयं लिंग के या फिर लड़का एक लड़के के प्रति, लड़की एक लड़की के प्रति भी आकर्षित हो सकती है. But remember, this is normal to get attracted. Okay, it happens. मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं किसी के प्रति आकर्षित होना बहुत ही साधारण बात है. The problem is, what do you do with your attraction? पर समस्या यह है कि आप उस आकर्षण को कैसे संभालते हैं और उसे कैसे खत्म कर सकते हैं या फिर उसमें कैसे रह सकते हैं. Remember, God created Adam and Eve to have sex so that they can have children and the world can move forward with it. मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और इसलिए बनाया कि वो एक शारीरिक और यौन संबंध को कर सके ताकि वो अगले पीढ़ी को जन्म दे सके और इस संसार में फैल सके. The problem with homosexuality, पर जो समलैंगिकता का जो विषय है और उसका जो मुद्दा है वो इस प्रकार है. the problem is they will try to have sex between them. समलैंगिकता का जो समस्या है वो ये है कि एक ही लिंग के लोग एक दूसरे के साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश करते हैं. And it will never result in a child. और इस प्रकार के एक संबंध के वजह से कभी भी आप एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती. And it will defeat the purpose of God. और इसके वजह से परमेश्वर का जो उद्देश्य है जिसके लिए परमेश्वर ने एक नर और नारी को बनाया था वो खत्म हो जाता है. Apart from that, there are a lot of diseases that you'll catch with it. और सिर्फ यही नहीं, ऐसे एक संबंध के वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं. So in the design of God, this is a fault. This is a faulty way of doing things. That's why it's called a sin. It is wrong. That's not the right way of doing things. और परमेश्वर के हिसाब से और परमेश्वर की क्रिया के और कृति के अनुसार ये जो समलैंगिकता है वो एक पाप है, वो गलत है और पवित्र शास्त्र के विरुद्ध है. Let me just tell you one more thing. मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा इसी के साथ ही There साथ. was a research done by two famous researchers in 1993 by a person called Dean Hammer and Charles Thomas. चार्ल्स थॉमस और डीन हैंगर नाम के दो व्यक्ति थे जिन्होंने 1983 में इन विषयों के बारे में रिसर्च किया था.
हम उसके बारे में देखेंगे। And that research, the result of that research became very famous. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने जो चीज खोज किया या फिर जो उन्होंने सीखने की कोशिश की, उनकी जो उसका जो कार्य था, उसका जो अंत में जो रिजल्ट आया था, वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था। And they said that homosexuality is a genetic problem. That means there is a particular genes that is making you become homosexual. That is their research they found out. और उन दोनों के उस खोज से उन्होंने ये पता चला कि समलैंगिकता एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के अंदर के जीन या हार्मोन के वजह से होता है। And first of all, and what the result that they said is around 8 to 25% of homosexuals are actually a genetic disorder. और उस खोज के और उस पढ़ाई के बाद उन्होंने इस प्रकार बताया कि 8 से लेके 25% के ये जो समलैंगिकता का जो विषय है या जो कारण है, वो जीन या फिर हमारे रक्त के अंदर या हमारे शरीर के अंदर पहले से ही रहता है। 8 to 25 means average around 16%. That means out of 100 people who are homosexuals, 16 of them are genetic. But still 86 people are still not genetic. That's what they are proving itself. जिस प्रकार उनके खोज में उन्होंने कहा कि 8 से लेके 25%, इसका निकलता है अगर हम 100 लोगों पे अगर हम उनके अध्ययन के बारे में रखें तो 100 में से 16 लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर के रक्त के या फिर उनके शरीर के अंदर जो जीन है उसके वजह से समलैंगिकता के वजह में कारण में फंस जाते हैं, पर बाकी बचे हुए जो लोग हैं वो जानबूझकर इस कार्य में आते हैं। Even after that research, many others made researches and found out that even that 8 to 25% is also not proven. It is just one of their findings, but it is not proven findings actually. और उसके बाद इन दोनों के अध्ययन के बाद भी कई लोगों ने इस समलैंगिकता के विषय पर अध्ययन किया और उन्होंने बोला कि ये जो प्रतिशत, ये जो कह रहे हैं 8 से 25 का जो प्रतिशत है, वो इस प्रकार है कि वो उन्होंने खुद अपने अंदाजे से रखा है। एक हम वास्तविक रूप से व्यक्तिगत रीति से इस चीज को हम समझा नहीं सकते या फिर इसे स्थिर नहीं कर सकते। But that research became so famous that almost everybody started thinking that homosexuality is a genetic problem. That means people are born as homosexuals. पर ये अध्ययन इतना प्रसिद्ध हो गया कि लोगों के बीच में ऐसी एक अफवाह या फिर ऐसा एक बात फैल गया कि समलैंगिकता एक ऐसा एक विषय है या फिर एक ऐसी एक बीमारी है या फिर ऐसा एक कार्य है जो एक व्यक्ति के अंदर उसके जीवन की शुरुआत से ही पाया जाता है, जो उसके खून में या फिर उसके जीन में होता है। But it has been proven enough that it is actually because of many other environmental factors, the family background, the way this child was brought up, many other things, and ultimately the choice that person made. So that it is never proven that it is actually a genetic problem. पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तविक रूप से हम कभी भी इस चीज को स्थिर नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति के अंदर ऐसी एक जन्म से उसके अंदर एक ऐसी बीमारी है या फिर ऐसा एक कार्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब बातें इसलिए होते हैं कि हमारा परिवार कैसा है, हमारे परिवार के लोग कैसे, हम किस समाज में रहते हैं, हमारे समाज में किन लोगों के साथ हमारा वार्तालाप है, हम किन श्रृंखला के लोगों के साथ रहते हैं, हमारा स्तर क्या है, हमारा शरीर का विकास कैसा है, और सबसे ज्यादा बढ़कर उन सब चीजों से बढ़कर सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या करना चाहते हैं, वो सबसे ज्यादा महत्व देता है। So just like getting attracted to a girl for a boy is normal, you may even get attracted to another boy, but to have a sexual relationship before marriage or outside marriage with a girl or with a same-sex person, both are wrong. मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी पुरुष या किसी लड़के या किसी स्त्री के प्रति आकर्षित होना साधारण बात है, वो आपकी उम्र में होता है, और किसी लड़का या किसी लड़के के प्रति या किसी लड़की कोई लड़की के प्रति भी आकर्षित हो जाए, ये भी साधारण बात है। पर ये साधारण बात से हटकर अगर आप उस दूरी को खत्म कर पास आ जाते हैं और शादी से पहले ऐसे यौन संबंध या शारीरिक संबंध बना लेते हैं, तो दोनों अवस्था में, अगर वो किसी लड़की के साथ हो, लड़के के साथ हो, या लड़के के बीच में हो या लड़की के बीच में हो, वो दोनों पवित्र शास्त्र के आधार पर गलत है। The purpose of marriage, husband and wife, is to come together, have sex and have children. Now in some cases, man and women, when they come together and even though they have sex, they may not have a child. That's because of a medical problem. The problem with the homosexuals is not medical, it is not genetic, it's a choice problem. That's why it's a sin. और उसी के साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं,
एक लड़का एक स्त्री या पुरुष वो साथ आते हैं, शादी करते हैं, उनका यौन संबंध और शारीरिक संबंध होता है, वो इसलिए होता है कि वो एक बच्चे को जन्म दे। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो दोनों साथ आने के बाद भी उनका एक बच्चों का जन्म नहीं हो पाता, क्योंकि उनके शरीर में कुछ बदलाव होता है या फिर ऐसी एक मेडिकल चीजें उनके जीवन में होती है जिसके वजह से वो इस कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। पर ये साधारण है। पर एक सेम लिंग के साथ या फिर एक समलैंगिक व्यक्ति के साथ या फिर अपने जैसे एक लिंग के साथ यौन संबंध करना बिल्कुल गलत है, और वो जो करते हैं वो हमारी इच्छा से ही करते हैं। Okay. Okay, thank you, Vijay. And it was very clear. So, my next question is regarding the extramarital affair. Okay, biblically and the wordly, we very well know that it's very wrong. So, if someone has get into that wrong side, okay, so how can he come out and have a good family life? Okay, I think the Bible is very, very clear that marriage should be between a man and a woman, and sex must be only in the context of marriage. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिरिल भैया, व्हाट वाज द क्वेश्चन? मेरा सवाल ये था, हम सामाजिक तौर पर भी, परमेश्वर के वचन के तौर पर भी हम जानते हैं कि शादी के अलावा शारीरिक संबंध बनाना ये गलत है। लेकिन एक इंसान जब उस पाप में गिर जाता है, वो किस प्रकार से बाहर आएगा और अच्छे से एक पारिवारिक जीवन कैसे बिता सकता है? Okay. Carry on, sorry, Babu. So I told you that according to the Bible, marriage is supposed to be between a man and a woman, and sex must only be in the context of marriage. और जिस प्रकार हम देखते हैं, पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहता है कि जो शादी है वो एक पुरुष और स्त्री के बीच में होना जरूरी है, और उसी के साथ ही साथ शादी के बाद ही यौन संबंध या शारीरिक संबंध होना चाहिए, ये पवित्र शास्त्र के साथ कहा जाता है। And the bond between the husband and wife should be love and the love of God. और मैं आपको बताना चाहता हूं, उन दोनों के बीच की जो संबंध है, उस संबंध का जो आधार है वो मसीह के प्रेम के द्वारा ही होना चाहिए। Love is something that has commitment, that is pure, and that stays unconditional lifelong. मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेम या प्यार एक ऐसा अनुभव है जो बदलता नहीं, वो हमेशा एक दूसरे के प्रति आदर देता है, सम्मान देता है, वो कभी ईर्ष्या नहीं करता और कभी भी किसी के विरुद्ध में बुरा नहीं करता है। So any sexual relationship outside of marriage is a sin before God. और मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने विवाह के अतिरिक्त जीवन में अगर आप किसी के साथ एक शारीरिक संबंध बना लेते हैं, तो पवित्र शास्त्र के आधार पर वो बहुत बड़ा पाप और गलत काम है। The first thing is, when you are in sin, confess your sin, accept it, apologize, say sorry, don't justify it. और अगर आप किसी कारणवश इस गलती में अगर आप फंस जाते हैं, अगर आप ये क्रिया कर लेते हैं, तो आप अपनी गलती को माने, ठीक है, और उसे अपनी गलती को मानकर अपने पाप का पश्चाताप करे, और उसे लोगों को ज्यादा समझाने की कोशिश मत करे, वरन अपनी गलती को समझे और परमेश्वर से माफी मांगे। Get out of that relationship immediately, because it is not at all pleasing to God. और आप उस व्यक्ति के साथ जो आपने संबंध रखा है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, उस संबंध से, उस व्यक्ति से आप दूर चले जाइए, क्योंकि परमेश्वर के आधार पर और दृष्टिकोण से ये बहुत ही गलत है। Obviously, your spouse must, if they come to know it, and it's good they come to know it, but they must be able to forgive you and accept you into the relationship. And I hope that spouse has enough of a forgiving heart to accept. और मैं विश्वास करता हूं कि अगर आपके जीवन में ऐसा एक कार्य या फिर गलत काम हो जाता है, तो आपकी जो साथी है वो आपके इस गलती को समझकर, उनका दिल इतना साफ और आपके लिए उनके जीवन में इतना प्रेम हो कि आपके उस गलती को समझे, और वो इस बात को आप उन्हें समझाए कि मैं इस गलती में फंस गया था या फंस गई थी और मैं इससे बाहर निकल चुका हूं, अभी मुझे सिर्फ मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं, इस कार्य को अच्छे से समझाए।
Now it's important that you put yourself into a group which for to whom you are accountable for your life, or especially in your marriage relationship. और उसी के साथ ही साथ आप ऐसे लोगों के संग्रह में रहे या फिर ऐसे गुट में रहे जो आपको अच्छी रीति से आगे बढ़ाते हो, जो आपके शादी के जो आपका जो संबंध है उसमें आपको और मजबूती दिलाए, ना कि उसे बिगाड़े. And I think it is step by step restoration. It may take some time for healing to build trust back, but that is the only way you can move forward. और किसी कारणवश अगर ये गलती हो जाती है तो आप ये ना सोचे कि एक ही पल में आप सब कुछ सुधार पाएंगे या सब कुछ साधारण हो जाएगा. आप थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि एक पल से दूसरे पल पर पहुंचकर उसे ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा. उस समय तक आप प्रेम में और बड़ी ही आशा के साथ उस समय में आप स्थिर रहें. Don't try to hide it. आप अपनी उस गलती को छिपाने की कोशिश ना करें. Don't try to justify it. आप उस गलती को किसी और के सामने उसे समझाने की कोशिश ना करें. Don't try to handle it on your own. और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने आप खुद उस समस्या को खत्म करने की कोशिश ना करें, किसी की सहायता लें. You need help आपको उस समस्या से बाहर निकलने के लिए किसी की जरूरत है, because you have fallen into a trap. क्योंकि आप एक जाल में फंस गए हैं. Humble yourself. अपने आप को नम्र करें Ask for help. और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो मदद करें. Go through the process उस प्रक्रिया से आप जाएं and come back to the normal track of life which God has for you. और कुछ समय के बाद आपका जीवन स्वयं उस चाल में आ जाएगा, वो साधारण चाल में आ जाएगा जहां से परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन कैसे चलना चाहिए. Okay, thank you, Sonia. Okay, now my last questions. We have actually dealt all the aspects of this topic. Okay, we know that everyone has to go through these problems. Along with these problems, how can a person live a peaceful life or live a blessedful life, biblical life? हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है कि ये सब परेशानियां, ये सब मुद्दे हमारे जीवन में जरूर आएंगी, क्योंकि हम संसार में रहते हैं. ये सब बातें हमारे जीवन में आएंगी. पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये सब चीजें हमारे जीवन में होने के पश्चात बाद भी हम मसीह में या वचन के आधार पर एक पवित्र जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं और आगे चल सकते हैं. Okay, one, remember this old saying, prevention is better than cure. जिस प्रकार एक पुरानी कहावत है कि निरोध करना समस्या को अपने सिर पे रखने से अच्छा है. Paul told Timothy, flee sexual immorality. Flee from that place. Flee, run away from that place. जिस प्रकार पौलुस ने तिमुथियुस से कहा कि ऐसे शारीरिक व्यवस्थाओं या फिर ऐसे कार्यों से और या ऐसी जगहों से तू दूर भाग जा. The Bible also says, don't test the Lord your God. और उसी के साथ ही साथ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को किसी प्रकार के टेस्ट या फिर परीक्षा में ना डाल. If you go to a zoo and you put your hand inside the cage and see, let me see what the lion will do. Let me see. You think you'll just be safe? One bite, you might just have your hands chopped off, right? So if you're foolish, if you're wise, you will not test that lion. You will not try to play with that lion, right? It's dangerous. जिस प्रकार अगर हम एक जानवरों के रखने वाली एक स्थान में जब हम जाते हैं, अगर हम एक बेवकूफ व्यक्ति है तो वो क्या सोचेगा कि मैं अपना हाथ जो है वो एक पिंजरे के अंदर डाल के देखता हूं और मैं देखता हूं कि शेर मेरा हाथ खाएगा कि या नहीं खाएगा. ठीक है, तो वो एक बेवकूफ या फिर एक मूर्ख व्यक्ति है. पर एक समझदार व्यक्ति कभी भी इस प्रकार के कार्य को नहीं करेगा. The best time for you to avoid problems and grow in the right track is during adolescence. मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन परेशानियों से दूर हटकर एक सही मार्ग को चुनना और सही मार्ग में चलने का जो सही समय है वो किशोर अवस्था का समय है. You know, it's good for boys to look at girls like their sisters. इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है और इस बात को बड़े समझ से हमें जानने की भी जरूरत है कि जवान भाइयों को एक दूसरी बहन या लड़की को अपने बहन के समान जानना और समझने की जरूरत है. If you have a sister
then you must treat another girl the way you would like other boys to treat your sister. अगर आपकी एक बहन है और आप चाहते हैं कि कोई दूसरा लड़का आपकी बहन के साथ कैसा व्यवहार करे, उसी प्रकार आप भी देखिए कि आप दूसरे एक लड़की के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं, ताकि आप समझे कि दूसरा लड़का आपकी बहन के साथ वैसा ही व्यवहार करे। If you have a wife, then you must treat other women like the way you want other men to treat your wife. अगर आपकी पत्नी है और आप चाहते हैं कि उसके साथ अच्छा व्यवहार हो, तो मैं चाहता हूं कि आप एक आदमी या फिर एक पुरुष के रीति से दूसरे स्त्री या दूसरों की पत्नी के साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसे आप चाहते हैं कि दूसरे पुरुष आपकी स्त्री के साथ व्यवहार करें। But as I said, when you're growing through adolescence, you'll have so many, feelings and attractions. Talk to somebody about it. और जिस प्रकार मैंने पहले भी आपको कहा कि जब आप जवानी या जब आप कौशल अवस्था के समय में आप जा रहे होते हैं, तब आप इन सब प्रक्रिया से, इन सब चीजों से आप लड़ रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं। तो इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए आप किसी परिपक्व व्यक्ति से बात करें और उनके आदेशों पर चलें। If you like a boy or a girl, if you can, try to talk to your parents about it. Just tell them, you know what, I think I'm liking that girl or I like that boy. Tell somebody. It helps when you talk about your feelings to someone. और उसी के साथ ही साथ अगर आपको कोई लड़का या आपको किसी लड़की अगर आपको पसंद आता है, तो ये साधारण सी बात है, तो आप उस पसंद के बारे में अपने माता पिता को बताएं कि जो सही है, और अगर वो सच में एक अच्छा संबंध है तो वो आगे बढ़ सकता है, जिसके कारण आप किसी प्रकार की गलत कार्य में नहीं फंस जाएंगे। Don't keep all your feelings inside. One day it'll all come out like a volcano. It's better to keep sharing your feelings to somebody so that it doesn't come out like a volcano and surprise everybody. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इन सब बातों को अपने हृदय में ना रखें, इन सब भावुक अवस्थाओं को अपने जीवन के अंदर संचय करके ना रखें, वरन इसको बाहर आने दें। अगर आप इसे बाहर आने नहीं देंगे तो वो एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह एक दिन फट जाएगा, जिसका कोई भी स्थिर नहीं होगा और वो हर जगह हर चीजों को खत्म करता जाएगा। इसलिए जब आप ऐसे चीजों से जब आप जूझते हैं, तो आप इन सब चीजों को किसी और को बताएं, समझाएं और उनसे बातचीत करें। Talk to God about it. और अगर आपको कोई भी नहीं मिलता है, तो सबसे अच्छा साथी हमारा परमेश्वर है, आप उनसे बात करें। He created opposite sex, he created everything, he understands everything. Talk to him. परमेश्वर ने ही दूसरे लिंग को बनाया, स्त्री पुरुष को बनाया, परमेश्वर ने ही शारीरिक और यौन संबंध का कार्य को शुरू किया, और परमेश्वर ही चाहता है कि हम इन सब बातों पे अच्छे से बढ़ सके। तो इसलिए अगर आपको कोई साथी नहीं मिलता है, तो आप परमेश्वर से इन सब विषयों के बारे में प्रार्थना One more करें। last point. Live a healthy lifestyle. Eat healthy food. Don't unnecessarily drink too much of Coke and everything. You're already having enough hormone, enough energy. You put more into that, you will become more excited, eat healthy food, eat vegetables, eat fruits. It will calm you down better. और उसी के साथ ही साथ एक और टिप्पणी मैं साथ में रखना चाहूंगा, वो ये है कि आप गर्म चीजों को खाने का या फिर गर्म चीजों को खाने की कोशिश ना करें, और अच्छा खाना खाएं, सब्जियां खाएं, फल फूल खाएं, फल और अच्छी ऐसी वस्तुएं खाएं, और कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए जो हमारे शरीर को उत्तेजित और गर्म करता है, क्योंकि पहले से हमारा शरीर इतना उत्तेजित और गर्म हो चुका होता है कि हम उसे संभाल नहीं पाते। तो ऐसी चीजों को आप ना खाएं जो आपके शरीर को और आपको उत्तेजित करे। And also get a lot of good rest. और उसी के साथ ही साथ आप अच्छे रीति से अपने शरीर को आराम भी दें। Don't take enough rest, take it easy, because too much energy is there at that point. आप ये कौशल अवस्था का जो समय है, वहां पर उस समय आपके जीवन में बहुत ज्यादा जोश रहता है, बहुत ज्यादा ताकत रहता है। उस सब को शांत रखें, आप शरीर को अच्छा आराम दें, जिसके द्वारा सब चीजें अच्छी रीति से खत्म हो जाएंगी। Let me tell you last one point. और एक और टिप्पणी मैं बोलना चाहूंगा। This stage is not a permanent stage. It will pass. ये जो एक समय है, ये एक स्थिर समय नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये रहेगा। ये एक समय है जो खत्म हो जाएगा। आपको इस समय से आगे आप बढ़ जाएंगे, वो समय खत्म हो जाएगा। Right now, like a roller coaster, but then slowly the गाड़ी will become straight and will become flat. Then it becomes easier. अभी जो आपका जिंदगी है या फिर वो समय है, एक रोलर कोस्टर की तरह होगा, पर उस रोलर कोस्टर के समय को भी आप खत्म कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो गाड़ी होगा वो समतल अच्छे रास्ते में चलना शुरू करेगा। Okay.
Okay, thank you. Thank you, Via, for coming on this platform and clarifying all these issues. Really, it was really a good time with you. Again, I really thank you for all these clarifications. आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में इस वीडियो को देखने के बाद अगर कुछ भी अगर सवाल अगर आपके मन में आता है तो आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और उस विषय को लेकर हम लोग आने वाले समय में हम लोग उसके विषय में हम लोग वीडियो बनाएंगे और आपको उस विषय में और क्लैरिटी हम लोग देने के लिए कोशिश करेंगे। और हर हफ्ते जो है हम लोग अलग अलग इश्यूज को लेकर आएंगे और हम लोग ये देखेंगे कि परमेश्वर का वचन उस विषय के बारे में हमें क्या सिखाता है। और भूले नहीं, आप इस चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में हर हफ्ते जो निकलेगा, जो वीडियो निकलेंगे, उस वीडियो को आप लगातार आप अपने चैनल में पा सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष